Hello kids, I'm mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds Class 8 by Brain Root. So today we are starting Chapter 3, Understanding Quadrilateral. Quadrilateral, very important topic. So let us start. Getting ready. Quadrilaterals are used by engineers and architects to create floor plans for new building by making effective utilization of space. The shapes of many rooms, the walls of all houses and the floor in most of the cases are in shape of quadrilateral. Quadrilaterals are the second most popular shape used in architectural designs. So, can you identify the shapes of different quadrilaterals used in the given building? Okay, one building is given, you can find the shapes, different shapes. Now one question, how would you construct different types of quadrilaterals with accuracy? तो ये भी हम करते हैं. Let's start. Introduction. Quadrilateral. A quadrilateral is a four-sided figure. Quadri means four and lateral means sides. तो four sides polygon is called a quadrilateral, जिसमें four sides होंगी. That is a quadrilateral. So you can see ABCD is a quadrilateral. Its sides are AB, BC, CD and AD. Four vertices A, B, C and D. Four angles, आप कह सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D और आप इनको वैसे भी नेमिंग दे सकते हैं एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA. So four angles and two diagonals. Diagonals क्या होते हैं? जो opposite vertices को join करें. So two diagonals AC and BD. So two sides with a common vertex are adjacent sides. जो दो साइड एक पॉइंट पे मिलेंगी उनको हम बोलेंगे adjacent, जैसे AD और DC है. Okay? AB and DC are opposite, right? So a quadrilateral has infinite number of interior and exterior points. Now for example, side AB and BC, BC and CD, CD and DA, DA and AB. These are what? These are the adjacent sides. Now if two sides with no common vertex, those are opposite, जिसमें कोई common vertex नहीं होगा, तो दो पेयर हैं अपोजिट साइड के, फोर पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के. सो टू पेयर्स AB and DC, AD and BC, these are opposite sides. Now a pair of interior angles with a common arm are called adjacent angles. For example, एंगल DAB and एंगल ABC जो एक ही लाइन पर बनेंगे वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स. ऐसे ही एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल BCD, एंगल CDA, एंगल CDA एंड एंगल DAB. और जो क्या होंगे? जिनमें कोई कॉमन आर्म नहीं होगी, यानी जो अपोजिट साइड्स पे बनेंगे लाइक दिस. दीज आर एडजेसेंट बट दिस एंड दिस, these are opposite like A, B, C, D. A and C are opposite, B and D are opposite, right? तो ऐसे ही two pairs होंगे opposite angles के. Now, all points lying inside the quadrilateral are interior. जो points अंदर होंगे उनको हम बोलेंगे interior points, जैसे X, Y, L, M. And all points lying outside, जो points बाहर होंगे उनको हम बोलेंगे exterior points, जैसे K, V, U. Okay? The interior of a quadrilateral together with the boundary is the quadrilateral region. The interior of a quadrilateral together with the boundary is called the quadrilateral region. Now convex quadrilateral. A quadrilateral is convex if the line containing any of its side has the remaining vertices on the same side. Like figure king is convex. आप देखो KING. Because vertices K and I lie on the same side of line NG. NG की सेम साइड पे है K और I. ऐसे ही GK की सेम साइड पे है I और N. जो बाकी vertices है वो सेम साइड पर हो. ऐसे vertices N and G on the same side of KI
and vertices G and K on the same side of IN. Okay, in a convex quadrilateral आप सिंपल सी बात याद रखें, the measure of each angle is less than 180. जो भी एंगल बनेंगे वो लेस देन 180 होगा, दैट इज द कॉन्वेक्स। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो रिफ्लेक्स होगा, जो मोर देन 180 होगा। सी कॉनकेव quadrilateral, a quadrilateral which is not convex is concave. In this, the vertices P and Q lie on the opposite side of line R and S. Okay, and in a concave quadrilateral, the measure of at least one angle is more than 180. जैसे आप देख सकते हैं, ये जो एंगल S है, it is more than 180. तो ये हमारा क्या है, concave, right? Now be sure a quadrilateral has infinite number of interior and exterior points. Now we are talking about angle sum property of a quadrilateral. जनरली जो हम क्वाड्रिलेटरल डील करेंगे इसमें वो क्या होंगे, हमारे कॉन्वेक्स। ओके, सो जनरली जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, दोज आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यू नो, इसमें 4 एंगल्स हैं, तो इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा, ऑलवेज 360 डिग्री। अब इसे शो हम कैसे कर रहे हैं, सी लेट ए बी सी डी बे क्वाड्रिलेटरल, हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया और हमने उसमें एक डायगोनल ले लिया, चाहे आप ए सी ले लो चाहे आप बी डी ले लो। बी डी डायगोनल लेने से क्या आया, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गई। ओके, आपको पता है ईच एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट इट बी 1 2 3 4। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो एंगल ए +1 +2 इन तीनों का सम होगा 180। ऐसे बी सी डी में एंगल C +3 +4 इन तीनों का सम होगा 180। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दिस साइड प्लस दिस साइड। तो आपके पास क्या आएगा, एक साइड ये आएगा और एक साइड आ जाएगा 360 डिग्री। अब आप देखो A और C तो एज इट इज रहेंगे। हम देखते हैं 1 और 3 से क्या बना, एंगल B, और 2 और 4 से क्या बन जाएगा, एंगल D। तो वी कैन हैव A + B + C + D, देयर सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर कमिंग टू एग्जाम्पल 1। The sum of the 2 opposite angle of a quadrilateral is 200 degree. The other 2 opposite angles are equal. What is the measure of the equal angles? हमें 2 opposite angles का sum दे रखा है 200 और बाकी के दोनों opposite angles equal हैं, तो let it be x. Okay, let each angle be x. तो sum क्या हो जाएगा उनका, x + x यानी 2x, और बाकी के 2 angles का sum कितना है, 200, and we know sum of all the angles 360 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x + 200 = 360, यानी 2x = 200 इधर लेके जाएंगे -200 हो जाएगा 160, सो x = 80, यानी इक्वल एंगल का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। नाउ एग्जाम्पल 2, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:4:4। जब भी एंगल्स या कुछ भी हमें रेशियो में गिवन होगा तो हम उसे किसी वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं। अब 4 एंगल्स की रेशियो पता है हमें, तो लेट द एंगल्स बी x, सेम वेरिएबल 3x 4x 4x, तो चारों एंगल्स ये हो जाएंगे और एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो इन सब का सम कितना होगा, 360। हम इक्वेशन बना लेंगे। नाउ वी कैन ऐड दीज ऑल बिकॉज सब x में है, तो 1 + 3 4 + 4 8 + 4 12x = 360, तो x is 30। तो एक एंगल आ जाएगा 30, नेक्स्ट होगा 3 × 30 90, 4 × 30 4 × 30। So like this you can find all the angles. Now example 3, the sides of a quadrilateral are produced in order. What is the sum of the 4 exterior angles
1 2 3 एंड 4। हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल की साइड को प्रोड्यूस कर दिया, उससे क्या हुआ, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गए। अब हमें इनका सम फाइंड करना है। ओके, सो हाउ टू डू इट। अब आप देखो, वी नो दैट एंगल 1 प्लस BAD, ये दोनों एंगल क्या है, दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180। फिर 2 प्लस ABC, इट इज ऑल्सो 180। फिर 4 प्लस ADC या CDA, इट इज ऑल्सो 180। फिर 3 प्लस BCD, इट इज ऑल्सो 180। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर दिया हमने। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड दीज 4 एंगल्स एंड दीज 180, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 720। ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये क्या है, ये सारे के सारे एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो इनका सम कितना है 360। तो क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 360, फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे 360 ऑन द अदर साइड। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 360। हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलीगन यानी चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ साइड्स, बट एक्सटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Now check yourself, in the given figure find the measure of the unknown angles। एक फिगर गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ से एंगल्स फाइंड करने हैं। सो आई होप यू कैन ट्राई दिस वन ऑन योर ओन। सो नाउ एग्जाम्पल 4, find the measure of each exterior angle of a regular polygon with 9 sides। As I told you कि जितने भी पॉलीगन हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 1 एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 9। रेगुलर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो 9 साइड्स है, इसका मतलब कितने एंगल्स होंगे, 9 ही एंगल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 9 से, यानी हर एक एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी देयर इज फॉर्मूला 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। सो n इज 40। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 15 यानी 24। वेरी सिंपल। ओके, नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स गिवन। If A, B, C, D are 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear and the line segments AB, BC, CD and DA do not intersect except at their endpoints, then the figure formed by these 4 segments is called the quadrilateral ABCD. Now the next point, a quadrilateral in which a line drawn through any 2 vertices has the remaining 2 vertices on the same side, it is called convex, and the sum of the angles of a quadrilateral is always 360 degree. Now we are coming to exercise 3.1. Like the second question, 3 angles are equal. The 4th angle is twice one of the angles. So find the measure of each angle. तो 3 एंगल्स इक्वल है, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स, और जो 4th एंगल है वो ट्वाइस है इनका, यानी 2x, एंड देयर सम इज 360. यू कैन फाइंड x फ्रॉम हेयर. 1 2 3 4 5 यानी 5x इक्वल टू 360. यू कैन फाइंड x फ्रॉम हेयर, राइट. Now the 6th question, the sum of the 2 angles of a quadrilateral is 180. What is the sum of the other 2 angles? You know quadrilateral के एंगल्स का सम 360 होता है, तो 2 एंगल्स का सम 180 है, तो रिमेनिंग क्या बचा, यानी 360 माइनस 180
180. Now see 7th question. In this figure, ABC is a triangle, O is a point in it, OP and OQ are drawn perpendicular. OP and OQ क्या है? perpendicular है और एंगल B 65 गिवन है. फाइंड एंगल POQ. क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको तीनों एंगल्स पता है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो 90, इट इज ऑल्सो 90. तो तीन एंगल हमारे पास है 90, 90 एंड 65. कैन यू फाइंड द फोर्थ एंगल? यस, लेट इट बी x. तो x plus 90 plus 90 plus 65 equals to 360. We can find x from here. So that is angle POQ. Similarly, you can try these parts. Now we are talking about types of quadrilateral. So look at this chart which shows you the family of quadrilaterals. अब हम बात करते हैं quadrilaterals की, उसकी family की. So you know quadrilateral means 4 sides. अब कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जिसमें क्या है, एक ट्रेपीजियम आप देख सकते हैं. One is trapezium, this is trapezium, this is parallelogram and this is the kite. और फिर कुछ और केसेस हैं जिसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड रोम्बस. तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल. नाउ अब हम इनकी बात करते हैं. द फर्स्ट वन, दिस इज ट्रेपीजियम. ये कैसा है? अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड. आप देख सकते हैं इसमें एरो दे रखे 2 साइड्स पे, यानी ये पैरेलल है, यानी 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड जिसमें होगा, दैट इज अ trapezium. So it is given ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC. Okay, and a trapezium in which the non-parallel sides are equal, उसको हम बोलते हैं isosceles. कुछ ट्रेपीजियम में जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये क्या हो जाती है? इक्वल. तो वो क्या बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. So ABCD is an isosceles trapezium if opposite sides are parallel and AD equals to BC. One pair of opposite sides parallel and non-parallel sides are equal. बस आपने याद रखना है ट्रेपीजियम में क्या होगा? One pair of parallel side. Now we are coming to kite. Kite क्या है? A quadrilateral with 2 pairs of equal adjacent sides is called a kite. जिसमें जो adjacent sides हैं 2 पेयर इक्वल होंगे, यानी जैसे ये और ये इक्वल है और ये नीचे वाले आपस में इक्वल है. So EFGH is a kite. You can see this one where EF equals to EH, EF equals to EH and GH equals to GF. So note that in a kite the opposite sides are not equal. Opposite sides equal नहीं है, only adjacent sides equal है. Okay. Now we are coming to parallelogram. Very important. A quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel, उसको हम क्या बोलते हैं? parallelogram. जिसमें opposite sides जो है वो parallel हो. जैसे MNOP is a parallelogram with MN parallel to PO and PM parallel to ON. Okay. Now rectangle, a parallelogram, rectangle जो है वो parallelogram ही है. इसमें क्या होता है? In which all the angles are right angles is called a rectangle. And ABCD is a rectangle in which AB parallel to DC and AD parallel to BC. रेक्टेंगल में क्या होता है? ईच एंगल इज 90 डिग्री. अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी होती है. राइट. सो फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी रेक्टेंगल ओनली वन एंगल नीड्स टू बी राइट एंगल. द रेस्ट ऑफ द एंगल्स वुड देन ऑल्सो बी राइट एंगल्स. कैन यू प्रूव दिस? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए अगर हम एक एंगल ही 90 शो कर दें तो रेस्ट एंगल भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री. तो parallelogram becomes a rectangle when each angle is 90 degree.
and in rectangle opposite sides are equal, each angle is 90. Now we are talking about rhombus, a parallelogram in which all the sides are equal. जिसमें सारी sides equal होंगी, that is a rhombus. Parallel तो होंगी opposite sides आपस में और equal भी हैं, like EF equal to FG equal to GH equals to HE. The next is a square. A rectangle in which all the sides are equal is called a square. Rectangle में opposite sides equal होती है, square में all sides equal. So a square can also be defined as a rhombus in which all the angles are right angle. यानी जब rhombus का हर एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा स्क्वायर में. So PQRS is a square in which all the sides are equal and all the angles are equal to 90 degree. Now properties of some special quadrilaterals. अब हम इनकी properties की बात करते हैं. First of all, we are talking about properties of parallelogram. The first one, the opposite sides of parallelogram are equal. Parallel तो है और equal भी होती हैं. अब हम इसे show कर रहे हैं कैसे. देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB हमने एक डायगोनल ले लिया BD, जिससे हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई ABD एंड CDB. ओके, अब आपको दिख रहा है इसमें BD जो है वो क्या है, कॉमन. हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं. यू नो कॉन्ग्रुएंसी, हाउ टू प्रूव. कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 पार्ट्स लाइक SSS, SAS, ASA या फिर RHS. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक साइड तो कॉमन है. ओके, और क्या है, दो एंगल ABD और एंगल BDC. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज 2. 1 और 2 क्या है, इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल. ये लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बन गया. तो 1 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल. ऐसे ही दिस एंगल 3 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट एंगल. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जिससे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल. दैट्स व्हाई AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल टू CD. तो आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, I hope this is clear to you. Now the next is the opposite angles of parallelogram are equal. अब हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो इक्वल होते हैं. कैसे. नाउ वी हैव सीन इन फर्स्ट दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC. अभी हमने देखा कि ये एंगल 1 इक्वल टू 2 है और 3 इक्वल टू 4 है. ओके, इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं अगर इनको हम ऐड कर दें आपस में तो ये क्या आ जाएगा, यानी 1 + 4 इक्वल्स टू 3 + 2. इसका मतलब क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D. सिमिलरली हम शो कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C. तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल. राइट. Now third point, the diagonals of a parallelogram bisect each other. कोई भी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यानी हमें शो करना है OP इक्वल्स टू OR एंड OQ इक्वल्स टू OS. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग ट्रायंगल POQ एंड ROS. हमने ये दो ट्रायंगल चूज की. ओके, नाउ we can see that this is a parallelogram. So these sides are equal because opposite sides of parallelogram are equal. Okay, and let this angle 1, this angle 2, 1 equal to 2 alternate, 3 equal to 4 alternate. So we have ASA congruency. So these two triangles are congruent. Okay, ऐसे आप चाहिए दो triangles ले लो, ये भी congruent होंगी. तो after congruency remaining parts are equal. So OP equals to OR and OQ equals to OS. That's why diagonals of parallelogram bisect each other.
Now we are talking about properties of a rectangle. Since a rectangle is a special case of a parallelogram in which all the angles are 90 degree, the following properties follow. The first, opposite sides are parallel, all angles are 90 degree, opposite sides are equal. जैसे parallelogram में opposite side equal है, ऐसे rectangle में opposite sides are equal. The diagonals bisect each other. क्योंकि पैरेललोग्राम में आई हैव शोन यू, तो इट्स अ पैरेललोग्राम ओनली, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इन एडिशन वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल्स. नाउ द फिफ्थ वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. तो ये हम कैसे शो करेंगे, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी से, लाइक इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD. ओके, तो आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी शो कर देंगे. देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट टू डायगोनल्स आर इक्वल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus. Since a rhombus is a special case of a parallelogram in which all the sides are equal, the following properties follow. Opposite sides are parallel, all sides are equal, opposite angles are equal because parallelogram है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल्स. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जो डायगोनल होंगे रोम्बस के वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 पे. देखो कैसे, हमने एक रोम्बस लिया है PQRS, डायगोनल है PR एंड QS, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल ली है POQ एंड ROQ, POQ एंड ROQ, एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले ली हमने, जिसमें क्या है OQ जो है वो क्या है, कॉमन. OQ इक्वल्स टू OQ कॉमन एंड PQ इक्वल्स टू RQ बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ओके, एंड OP इक्वल्स टू OR, OP इक्वल टू OR है बिकॉज इट्स ऑल्सो पैरेललोग्राम. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट. ओके, यानी SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर इक्वल. और ये क्या है, दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल, यानी देयर सम इज 180. सपोज x है तो ये भी x होगा, x प्लस x इक्वल टू 180. So each angle is 90. That's why diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. I hope this is clear to you. ये आपको लिख के देखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये नहीं सिर्फ आपने देखा और आपको समझ आ जाएगा. Just you have to do it yourself. Then it would be clear to you. Now, properties of square. A square is a special case of a parallelogram. It satisfies all properties of a parallelogram, a rectangle and a rhombus. Thus in a square all the sides are equal, all the angles are right angle, opposite sides are parallel, the diagonals are of equal length because rectangle में अभी हमने शो किया था, ऐसे the diagonal bisect each other at 90 degree. तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की है, रेक्टेंगल की है, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, स्क्वायर में. Now we are talking about examples. Example 1, the diagonals of a rhombus PQRS intersect at O. If PR is 10, हमें diagonal दे रखा है 10 and QS दे रखा है 24. Find the length of the side. हमें find करनी है rhombus की side. Very important question. So first of all we know very well diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. तो ये क्या बन जाएगा, SO12, this is also 12, this is 12, this is 12, this is 5, this is 5. They are intersecting at, they are bisecting at 90 degree. तो आपके पास जो each triangle आएगी वो क्या बन जाएगी, right angle triangle. अब right angle triangle की two sides पता है 12 and 5. तो can you find the third one? Yes, by Pythagoras. ये थर्ड साइड हमारी क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज. तो यानी आप कह सकते हैं PS स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ओके, या कोई भी साइड PQ ले लो.
तो दिस इज 25 प्लस 144 यानी 169, तो PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी 13. सो व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस, दैट इज 13 सेंटीमीटर. Now example 2, ABCD is a parallelogram. Line segments AE and CF bisect angle A and C respectively. Show that AE parallel to CF. देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. ABCD पैरेललोग्राम है, लाइन सेगमेंट AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है A को, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और CF जो बाइसेक्ट कर रहा है C को, यानी यहाँ पे हमारे पास C के 2 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, और हमें शो करना है कि AE जो है वो CF के पैरेलल है. सो हाउ वी कैन शो इट. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल A और एंगल C इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं, A और C इक्वल है. अब हमें इनके बाइसेक्टर गिवन है. AE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, और CF बाइसेक्ट कर रहा है C को, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. ओके, एंड वी नो AE बाइसेक्ट एंगल A, तो हम लिख सकते हैं एंगल EAD इक्वल्स टू एंगल EAB, यानी हाफ ऑफ A. सिमिलरली एंगल ECF इक्वल्स टू एंगल BCF, हाफ ऑफ C. ओके, तो ये दोनों क्या है, एक्चुअली A और C इक्वल है, तो उनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल. वी कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, राइट. एंड वी नो वेरी वेल दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रांसवर्सल है, तो मान लो ये एंगल 3 है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ऑल्टरनेट एंगल. 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, इससे क्या आ जाएगा, 1 and 3 आर इक्वल. ये हमारे कौन से एंगल बन गए, ये बन गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल. और हमें पता है अगर कहीं पर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल. तो सी हियर इट इज गिवन angle ECF equals to angle CFB, that is alternate angles. So इससे क्या आ जाएगा, ये दोनों एंगल EAB equals to angle CFB, और ये बन जाएंगे हमारे corresponding. So that's why these lines are AE parallel to CF. I hope this is clear to you. So now concept highlight. A quadrilateral with one pair of parallel sides is called a trapezium. A quadrilateral with 2 pairs of equal adjacent sides is called a kite. A quadrilateral in which both the pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Parallelogram in which all angles are right angle is called a rectangle. And a parallelogram in which all sides are equal is a rhombus. The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of rectangle are equal and bisect each other. The diagonals of a rhombus are unequal and bisect each other at right angle. And diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. तो ये properties आपको याद रखनी है. Now we are coming to exercise 3.2. Like here, fourth question, if one angle of a parallelogram is 40 degree, what is the measure of the other angles? Very simple. एक एंगल 40 है, मान लो एंगल ABCD, ABCD पैरेललोग्राम एज्यूम कर लो. एंगल A क्या है, 40 डिग्री. तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल C भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री. ओके, राइट. और हम कह सकते हैं A और D क्या है, एडजेसेंट, तो इनका सम क्या है, 180. तो B कितना आ जाएगा, 140, और D भी कितना आ जाएगा, 140. एडजेसेंट है तो इनका सम होगा 180, राइट. तो 1 angle, 2 angles 40 40 and 2 angles 140 each. Okay. Now we are coming to like 6th question.
ABCD is a parallelogram. P and Q are the midpoint of AB and DC. आप parallelogram draw करोगे. ABCD. P and Q are midpoints. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of DC. Now P and Q joined. Prove that APQD is a parallelogram. हमें शो करना है कि APQD भी क्या है, एक parallelogram है. तो हमें पता है AB पैरेलल टू CD है बिकॉज पैरेललोग्राम है. तो इसका हाफ भी क्या होगा, अगर हम हाफ भी ले लेंगे वो भी पैरेलल ही रहेगा ना. हाफ ऑफ AB पैरेलल टू हाफ ऑफ DC और हाफ क्या है यानी AP इज पैरेलल टू DQ. तो वन पेयर जब पैरेलल होता है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम. तो सिमिलरली यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स. वेरी इंटरेस्टिंग. Now we are coming to construction of quadrilateral. Very interesting. Before discussing construction of quadrilateral, let us revise some important properties of quadrilateral. You know very well trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. It is a trapezium. Kite, a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal, is called a kite. The diagonals intersect at right angle. Parallelogram, a quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are equal, is called a parallelogram. In parallelogram, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal and diagonals bisect each other. Now rectangle, in parallelogram in which all angles are right angle, is called a rectangle. In rectangle, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, all angles 90 degree, diagonals are equal and diagonals bisect each other. Now we are coming to rhombus. A parallelogram in which all the sides are equal is called a rhombus. In a rhombus, opposite sides are parallel, all sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect the vertex angles. Okay. Now square, a rectangle in which all the sides are equal is called a square. In a square, all sides are equal, all angles are right angle, opposite sides are parallel, diagonals are equal, diagonals bisect each other at 90 degree and diagonals bisect the vertex angles. Now construction of quadrilateral. Recall that we need either of the following 3 out of the 6 elements to construct a unique triangle. अगर हमें triangle construct करनी है तो हमें 3 चीज़ें चाहिए. या तो 3 sides हो SSS, या फिर SAS means 2 sides हो and included angle हो, या फिर ASA यानी 2 angles and the included side given हो, RHS यानी right angle हो, hypotenuse हो और 1 side हो. Notice that a quadrilateral can be divided into 2 triangles by a diagonal. If we therefore apply the rules for the construction of a triangle, it becomes easy to construct a quadrilateral. To construct a quadrilateral, we need 5 out of 10 elements, यानी 4 sides, 4 angles, 2 diagonals हैं, तो हमें 5 चीज़ें चाहिए. As a rule, always first construct a rough figure of the quadrilateral and then mark the given elements before proceeding with the construction. जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है उससे पहले हमें उसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है. Now construction 1. To construct a quadrilateral given 4 sides and diagonal SS, SSD, 4 sides and 1 diagonal given है, तो आपने क्या करना है उसकी रफ फिगर ड्रॉ करनी है. फर्स्ट हमें क्या गिवन है, AB 4.5, BC 5.6, CD 5.9, DA 5.2 and diagonal AC 6.8. तो रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ABCD. देखो ये नेमिंग भी कंटिन्यूशन में होना चाहिए. समटाइम्स चिल्ड्रन दे टेक लाइक दिस, ABC ले लेंगे, दिस इज रॉन्ग. ओके, उसमें आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ABCD. ओके, हमारे पास 4 साइड्स हैं और एक डायगोनल 6.8 है. दिस इज अ रफ फिगर. अब इसकी हेल्प से हम आ जाएंगे फाइनल में. पहले हम क्या लेंगे, साइड DC लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल. 5.9 हमने ड्रॉ की. ओके, अब हमारे पास क्या है,
यू नो ए पॉइंट कैसे आएगा? अगर हम D से 5.2 ले लें और C से 6.8 ले लें, तो हमने क्या करना है, D पे कंपास रखा है, उसको ओपन किया 5.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। और ऐसे ही C पे कंपास रखा, 6.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट करेंगी वो पॉइंट क्या आ जाएगा, A, राइट। अब हमारे पास B पॉइंट मिसिंग है। B पॉइंट जो है वो C से 5.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो हम क्या लेंगे, C से आर्क ड्रॉ कर लेंगे 5.6 की, और A से वो 4.5 सेंटीमीटर अवे है, तो A से हम ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। तो ये दोनों कट करेंगे, वो पॉइंट आ जाएगा B। तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे AB और BC को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD, लाइक दे हैव गिवन इन द स्टेप्स। पहले ड्रॉ की एक ट्रायंगल ADC एज आई टोल्ड यू, फिर ट्रायंगल सेकंड कंस्ट्रक्ट की ABC, तो आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ कंस्ट्रक्शन 2, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गिवन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। समटाइम्स हमें 3 साइड्स गिवन है और दोनों डायगोनल्स गिवन है, तो नो प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, let the sides AD 4.2, DC 6.5, CB 5.8 and diagonals AC 6.9, BD 7.2। हमने क्या किया, फिर रफ स्केच ड्रॉ किया, ओके, DC को बेस ले लिया, ओके। नाउ व्हाट टू डू, आपके पास AD 4.2 है, AD is 4.2, DC 6.5 and CB is 5.8। यहाँ पे आपने मेजरमेंट मार्क करनी है ताकि आपको इजी रहेगा कंस्ट्रक्ट करना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ट्रायंगल की। कौन सी ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ADC या फिर ABC। इन्होंने ABC लिया है, चलो हम भी ABC ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, DC लिया हमने 6.5, B पॉइंट जो है वो D से 7.2 अवे है, तो D से हम आर्क लेंगे 7.2 की, और C से हम आर्क लेंगे 5.8 की। जहाँ पे आर्क कट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा B। तो ये ट्रायंगल आ जाएगी हमारे पास BCD, ओके। नाउ अब हमें पॉइंट A चाहिए, तो A क्या है, A D से 4.2 अवे है, तो हम D से आर्क लेंगे 4.2 की, और A पॉइंट C से 7.2 अवे है, तो 7.2 की आर्क ले लेंगे, ये कट करेगा, दैट पॉइंट इज A, सबको ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इन्होंने वैसे ही बताया हुए स्टेप्स कैसे करने हैं, एज आई टोल्ड यू। नाउ द कंस्ट्रक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल गिवन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। अब हमें एंगल्स गिवन है, 3 sides and SAS, AS, 3 sides and 2 angles। अब हम देखते हैं how to do it। Let the given side be AD 5.6, DC 6.2, CB 4.9 and the angles are 108 and 120। तो हमने रफ स्केच ड्रॉ किया। देखो जो एंगल्स हैं उनको आप बेस पे लेने की कोशिश करो। हमें DC गिवन है 6.2 और D और C एंगल गिवन है, तो हम DC को ले लेंगे एज द बेस। सो 6.2, एंगल D 108 एंड एंगल C 120, राइट। अब हम करेंगे, पहले हम लेंगे DC को बेस लेंगे 6.2। अब हम D की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे 108 डिग्री एंगल। यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ इट। 108 ड्रॉ कर दिया, और ये जो है 5.6 सेंटीमीटर लॉन्ग आर्म है, यानी यहाँ पे 108 डिग्री वाली एंगल की जो लाइन है उसको हमने 5.6 कट कर दिया, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारा A, ओके। अब हम आएंगे C पर। C पे हमने ड्रॉ किया 120 डिग्री एंगल। यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ इट। 120 के लिए पहले आप क्या करेंगे, 60 देन 120, ओके। तो ये आर्म आ जाएगी 120 वाली, और ये कितनी लॉन्ग है, 4.9। तो C से हम आर्क लेंगे 4.9 की, कट कर देंगे इस लाइन को,
ये आ जाएगा पॉइंट बी। तो वेरी सिंपल, अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ए बी सी डी इज अ quadrilateral. I hope this is clear to you. Now construction 4. To construct a quadrilateral given 3 angles and 2 sides. अब हमें 3 angles और 2 sides given है, तो what to do? Let the given angle be A 75, C 85, D 68 and the given sides AD 6.1 and DC 7.5 centimeter. तो पहले आप रफ स्केच लेंगे। A और D एंगल है तो AD को बेस ले लो 6.1, 75, 68 और एक एंगल है 85। तो A B C D हमने रफ स्केच ड्रॉ किया। नाउ कम टू फाइनल। AD ड्रॉ कर दो 6.1, A पे लो 75 डिग्री एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से। हमें AB नहीं पता तो हमने सिर्फ एंगल ड्रॉ कर दिया 75। नाउ कम टू D पे ड्रॉ करो 68 और हमें ये साइड पता है 7.5, तो D से हम इसको कट कर देंगे 7.5। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। C पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 85 एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये बेस लेके 85 ड्रॉ करेंगे तो ये जो रे आएगी जहां वो मीट करेगी 75 डिग्री लाइन को, वो पॉइंट आ जाएगा B। कंस्ट्रक्शन 5। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गिवन 4 साइड्स एंड 1 एंगल। अब हमें 4 साइड्स हैं और 1 एंगल गिवन है, जैसे AB 5.2, BC 3.8, CD 4.2, DA 3.5 एंड एंगल इज 70 डिग्री। तो हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ABCD जो हमें गिवन है हम उसको मार्क कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट टू डू। हमने लिया AB 5.2, A पे एंगल 70 है, A पे 70 डिग्री ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब ये जो एंगल की जो रेंज आएगी वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी A से 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ले लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा D हमारे पास। तो हम BD भी ले सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हमें पॉइंट C फाइंड करना है। B से C जो है वो 3.8 सेंटीमीटर अवे है, तो B से हम ले लेंगे 3.8 सेंटीमीटर की आर्क और D से ले लेंगे हम 4.2 की आर्क। तो हम जहाँ पे कट करेंगे दैट पॉइंट इज C। नाउ वी कैन ज्वाइन द लाइन, सो दिस इज द ABCD, right? Now concept highlight. A unique quadrilateral can be constructed given the following measurements: 4 sides and 1 diagonal, 3 sides and 2 diagonals, 3 sides and 2 included angles, and 3 angles and 2 included sides. Now exercise 3.3, construct the following quadrilateral ABCD. Name them if they are special quadrilateral. तो हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। और अगर वो कुछ स्पेशल हैं तो उसको हमें नेमिंग करनी है। नाउ वी आर कमिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। द फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम enable us to construct the parallelogram knowing only 3 of its elements. Property 1, we know the opposite sides are parallel and equal. Property 2, the diagonals bisect each other. The third one, the measure of the opposite angles are equal. And the fourth one, each diagonal divides the parallelogram into 2 congruent triangle. And the fifth one, the sum of the measure of any 2 adjacent angle is 180 degree. You have to keep in mind. Now construction 6. To construct a parallelogram given 2 adjacent sides and any 1 angle. अब हमें क्या गिवन है, लेट द गिवन मेजर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AB हमें 4.2 है, BC 3.8 है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड 4.2 है और अपोजिट साइड 3.8 है, यानी हमें 4 साइड्स गिवन है और एक एंगल 110 डिग्री एंगल D गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रफ फिगर बना लेंगे ABCD, जिसमें AB 4.2 है तो DC भी क्या हो जाएगा 4.2, AD कितना है
BC है 3.8, तो AD भी कितना हो जाएगा 3.8, राइट। तो हम क्या लेंगे, एंगल D 110 डिग्री है तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 110। हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, पर वो हमें पता होनी चाहिए तभी हम यूज़ कर सकते हैं। वी नो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो B भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हमने AB लिया 4.2 और यहाँ B बना दिया हमने 110, फिर B से हमने 3.8 आर्क ली, कट कर दिया, वो आ जाएगा पॉइंट C, राइट। फिर A से हम आर्क लेंगे 3.8 की, ओके, फिर हम C से ले लेंगे 4.2 की आर्क, जहां पे वो कट करेंगे, दैट पॉइंट इज D. So by this you can get the parallelogram ABCD. Now construction 7. To construct a parallelogram given two adjacent sides and any one diagonal given. अब two adjacent sides given है और one diagonal. Two adjacent sides का मतलब क्या है कि बाकी की दो साइड भी हम फाइंड कर सकते हैं। Let the parallelogram be ABCD with AB 5.5, BC 4.8 and one diagonal CA 6.2. तो आप रफ स्केच ले लेंगे, ABCD, AB है 5.5, BC है 4.8 और डायगोनल है 6.2। AB 5.5 है तो DC भी 5.5 है, BC 4.8 है तो AD भी क्या हो गया 4.8। तो आप क्या लेंगे, AB बेस लेंगे 5.5, पहले ड्रॉ करेंगे दिस ट्राइंगल ABC, B से क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे 4.8 की, A से आर्क लेंगे 6.2 की, वो आ जाएगा पॉइंट C, फिर C की हेल्प से एक आर्क लेंगे 5.5 की और A से लेंगे 4.8 की, वो पॉइंट आ जाएगा आपका D. सो इन दिस वे यू विल गेट अ पैरेललोग्राम ABCD. देखो इन्होंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की फर्स्ट ABC और फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की ADC. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन 8. टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम गिवन वन साइड एंड टू डायगोनल. अब एक साइड है और दो डायगोनल हैं, तो इसका मतलब क्या है, यानी टू साइड्स हैं एंड टू डायगोनल. सो AB 6 सेंटीमीटर, रफ स्केच, एंड टू डायगोनल 7.2 एंड 8.6, राइट. अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगानी है, वी नो वेरी वेल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये कितना हो जाएगा 4.3, 4.3, ये हो जाएगा आपका 3.6, 3.6. यानी हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल नीचे ड्रॉ कर देंगे 4.3 और 3.6 की हेल्प से, ये ट्रायंगल AOB आ जाएगी. फिर O की हेल्प से हम D और C पॉइंट फाइंड कर लेंगे, राइट. पहले आप AB लोगे 6 सेंटीमीटर, A से आपने आर्क ली 4.3 की, देन B से आर्क ली 3.6 की, ये पॉइंट O आ गया. फिर O से 3.6 एंड 4.3 you will get point C and D. So in this way you will get a parallelogram ABCD. Now we are coming to construction 9. To construct a parallelogram given two diagonals and the included angle. अब दो diagonals के बीच का angle given है. See how to do it. We are taking OR 3 सेंटीमीटर, हमने इस पे एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री, ये रे आ गई 60 डिग्री की. फिर यहाँ से O से इसको कट कर दिया हाफ ऑफ द डायगोनल, यानी 3.4 कट कर दिया. ओके, देन जितना 3 है इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया, जितना 3.4 है उसको नीचे ही एक्सटेंड कर दिया. नाउ वी कैन जॉइन द पॉइंट्स, सो वी आर गेटिंग अ पैरेललोग्राम PQRS. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल. Example 1. Construct a rectangle ABCD in which AB and AC, यानी one side given है and one diagonal given है. तो हम क्या करेंगे, रफ स्केच हमने ड्रॉ किया ABCD और rectangle में you know each angle is 90 degree and opposite sides are equal.
तो हम क्या करेंगे, हमने ए बी लिया बेस 4.5, बी पे बना दिया 90 डिग्री एंगल, ये लाइन जाएगी। ओके, नाउ वी डोंट नो बी सी बट वी नो ए सी 7.5, तो ए से हमने आर्क 7.5 की ड्रॉ की जो कट करेगी 90 डिग्री लाइन को, ये पॉइंट आ जाएगा सी। ओके, नाउ वी नो बी सी। नाउ व्हाट वी कैन डू, फ्रॉम ए 1 आर्क, जितनी बी सी है ए से उतनी एक आर्क ले लेंगे, और सी से 4.5 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट डी। नाउ यू कैन ज्वाइन द पॉइंट्स, यू विल गेट अ रेक्टेंगल ABCD. Now construction of square. Constructing a square given one side is simple since all the sides are equal and all the angles are 90 degree. Now example 2, construct a square given that its diagonal is 5.6. We will use the property that the diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 degree. हमें पता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डायगोनल को बेस ले लेंगे लाइक AC एज द बेस, और इसका ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ये 5.6 है तो ये डायगोनल भी 5.6 होगा, यानी इसके सेंटर से 2.8 और 2.8 कट कर दिया, तो बाकी के पॉइंट आ जाएंगे B एंड D. इनको हम कर देंगे ज्वाइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCD स्क्वायर. थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि जब डायगोनल गिवन है स्क्वायर में तो हमने डायगोनल को एज अ बेस लेके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस. We know that the diagonals of a rhombus intersect at right angle. A rhombus can therefore be drawn easily if the two diagonals are given. A rhombus can also be constructed given one side and one angle. It's like the SSA case of a parallelogram. See example 3. Construct a rhombus with side 4.6 and one the angle is 70 degree. One side 4.6 है मीन्स ऑल साइड्स आर 4.6. तो हमने रफ स्केच ड्रॉ किया. हम क्या करेंगे, 4.6 हमने बेस लिया, एक एंगल 70 है, एंगल 70 बना दिया और उस रे को 4.6 कट कर दिया, एक और पॉइंट आ जाएगा, लेट इट बी A. अब यहाँ से हमने क्या किया, ये 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज यू नो इट्स अ पैरेललोग्राम, तो इनका सम एंगल का सम कितना होगा 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110. यहाँ हम बना देंगे 110 का एंगल और इसको भी कट कर देंगे 4.6, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको हम कर देंगे ज्वाइन. सो देन यू विल गेट अ रोम्बस ABCD. Now concept highlight. A unique parallelogram can be constructed given the following measurement. If two adjacent sides and one angle, two adjacent sides and any one diagonal, one side and two diagonal, and two diagonals and the included angle. So exercise 3.4 is based on such type of constructions. You can try these one. Now we are coming to MCQ. Tick the correct option in each of the following. The first one, three angles of a quadrilateral are equal and one angle is 60. To find the equal angles, यानी 3 एंगल x plus x plus x plus 60 equal to 360. आप फाइंड कर लेंगे x. The second one, 3 angles are given. Find the fourth angle. You know sum of the angles 360. You can find it. The third question, the angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:4:6. So find the angles. तो हम कैसे करेंगे, 2x plus 3x plus 4x plus 6x equals to 360. Then you can find x and then find each angle. Now fourth question, sides of a quadrilateral which have a common vertex are called, जिसमें common vertex हो उनको हम बोलते हैं adjacent sides. Now the fifth one, a quadrilateral having a pair of parallel sides but the other sides non-parallel, that is a trapezium. The sixth one, in a dash all sides are equal and all angles are 90. All sides equal and all angles 90 स्क्वायर में.
Now 7, in dash both the pairs of opposite sides are equal and all angles are 90. That is a rectangle. 8th question, a quadrilateral cannot be constructed uniquely if its dash angles and dash side are given. हमें quadrilateral के लिए 5 things we need. इसमें 4 and 1 okay, इसमें 4 and 2 okay, we can, but 3 and 1, so this is not possible. So B part. Now the 9th one, to construct a quadrilateral uniquely we must know at least dash sides and 2 diagonals, at least 3 sides and 2 diagonals. So I hope this is clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.